Good morning, students. We have studied about the grouping of the substances or grouping of the materials in previous lecture or previous chapter. That was a sorting of materials, how we can classify the mixed substances or the garbage or the components of the garbage on the basis of their similarities or on the basis of their dissimilarities. Now in this new chapter we are discussing about the separation of substances. Suppose some of the substances like looking like one each other, तो how can we separate them? Suppose कीजिए कि आप लोगों ने चावल और चीनी शुगर एंड राइस को मिक्स कर दिया था. हाउ कैन वी सेपरेट देम? सपोज मैग्नेटिक सब्सटेंसेस मिक्स विद द सॉइल, तो हाउ कैन वी separate that things or those things? And some of the methods are there. Two methods are there, that is the manual method and picking up the methods one by one. Okay, manual methods को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे और जो normal methods है उनको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे. Okay, separation of substances. In previous class we have discussed about the sorting. Sorting का मतलब होता है हम लोग ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं. उनको कैसे करते हैं? रफ थिंग्स को अलग, हार्ड थिंग्स को अलग, सॉफ्ट को अलग, है ना, सॉलिड को अलग, लिक्विड को अलग, ये सारी थिंग्स जो है इनको अलग अलग हम लोग करते हैं एज अ ग्रुप. और बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, उनको सब्जेक्ट वाइज हम लोग ग्रुपिंग में डाल देते हैं. दैट इज कॉल्ड द सॉर्टिंग. बट द क्लासिफाइंग इज only and only on the basis of their similarities and dissimilarities. Things are separated or classified, grouped. That called the classification. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Classification. हम लोगों ने उसको classification कर दिया था. Now we are discussing about the separation of substances. Separation means separate out करना. Similar things को separate out करना, वो आपस में mix हो गए हैं, तो we have to separate out and make their pure appearance. It means suppose what are the pure substance? First thing we have to discuss the pure and impure things. Pure and impure things. What is the meaning of pure? Pure means it means the same type of particles are there, same type of atoms are here, so that is the pure. Suppose it is a sugar mixture. Sugar mixture, and that sugar mixture is mixed with the rice. That sugar mixture is mixed with the rice, and then this sugar and rice is mixed with each other. We have to separate out them. We have to separate out them. We have to separate out them. तो what we have to do? या तो हम लोग इसको क्या करेंगे? मैनुअल मेथड से हैंड पिकिंग करेंगे, या हम लोग इसको ऊपर से बहुत सारी मेथड्स हैं जिनके लिए हम लोग इनको सेपरेट करेंगे बहुत सारी मेथड्स के द्वारा. तो सब्सटेंस क्या है? प्योर और इम्प्योर. प्योर मीन्स सपोज द सब्सटेंस which have same or single type of particles. Single type of particles. उनके अंदर क्या है? सिंगल टाइप के पार्टिकल है. अगर राइस है तो राइस के ही पार्टिकल है, अगर शुगर है तो शुगर के ही पार्टिकल है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस. उसके अंदर और कोई इम्प्योरिटी नहीं है. इम्प्योर सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस दैट आर इम्प्योर्ड. That is all that in which another substance is mixed. उसके अंदर क्या है? another substance भी mixed है, तो उसको हम लोगों ने क्या बोला है? as a mix. impure जो substance है उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? mixture. उसको क्या बोल दिया हम लोगों ने? mixture. क्या बोला? Mixture. तो pure substance, that is the substance which have the same type of or single type of molecules or particles. Impure substance that in which some of or two or more substances are mixed. इसके अंदर क्या होगा? दो से ज्यादा substances क्या होंगे? Mixed होंगे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Mixture. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्सचर। मिक्सचर क्या है?
द appear the type of substance in which more than two or more than two substances are mixed. उसके अंदर क्या है, 2 और more substances mixed है. आई बात समझ में? ठीक है. मिक्सचर जो होता है उस मिक्सचर को भी हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. सपोज ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो, सपोज मान लीजिए कोई इम्प्योरिटी है वो कम है और हमारा जो एक्चुअल जो चीज मुझे चाहिए वो क्या है, बहुत ज्यादा है, तो हम लोग इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसके अंदर कौन सी इम्प्योरिटी है. आई बात समझ में? तो सम ऑफ द मेथड्स आर हियर दैट वी हैव टू यूज फॉर सेपरेटिंग आउट द मटेरियल, सेपरेटिंग आउट द थिंग्स और सब्सटेंसेस. ओके, फर्स्ट whenever we are choosing or we are separating the stones, सपोज कीजिए आपकी मम्मी गेहूं सेपरेट आउट कर रही है. गेहूं जो होगा वीट में स्टोन आ गया, वीट के अंदर कुछ स्टोन्स आ गए, तो दैट आर सेपरेटेड आउट बाय द हैंड पिकिंग. उसको हम लोग किस तरीके से सेंड कर सकते हैं, हैंड पिकिंग से उठा सकते हैं. आई बात समझ में? whenever the mixed particles are in larger size, किसमें है वो, लार्जर साइज में है, तो मुझे इजीली दिखाई दे रहे हैं वो और मैं उसको हैंड पिक कर लूंगा. आई बात समझ में? whenever these mixed substances are of different color from the substance, तो मैं उसको इजीली हैंड पिक कर लूंगा. ओके, देन बड़े साइज के हैं उसको मैं हटा सकता हूं, छोटे साइज के हैं उसको भी मैं हटा सकता हूं. सपोज whenever we are separating out the impurities by the hand, अगर उसको मैंने क्या किया है, हैंड से उठाया है, हैंड पिक किया है, तो दैट इज कॉल्ड हैंड पिकिंग. दैट इज कॉल्ड हैंड पिकिंग. तो हैंड पिकिंग से हम लोग सेपरेट आउट कर लेते हैं. नेक्स्ट is hand picking. After next is threshing. What is the meaning of threshing? After harvesting we have to separate out the husk material of the wheat from the stalks. जो गेहूं की बालियां हैं उसमें से मुझे क्या निकालना है, गेहूं निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी थ्रेशिंग करवानी पड़ेगी. क्या करवानी पड़ेगी, थ्रेशिंग करवानी पड़ेगी. और इस थ्रेशिंग से क्या होगा, दैट इज द स्टॉक जो होगा उसको अलग करना पड़ेगा. तो थ्रेशिंग का मेथड क्या है, इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ stalks from the grain by beating it on a solid surface. क्या बोला, सॉलिड सरफेस हमारे पास है, उसको हम लोग क्या, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा वीट वगैरह या जो भी ग्रेन है उसको हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे और उसको क्या करेंगे, हम लोग डंडे से पीटेंगे या फिर उसके ऊपर से हम लोग कोई चल कर जाएंगे, उसके ऊपर कुछ किसी भी चीज की स्ट्राइक करेंगे, चोट मारेंगे, तो द ग्रेन इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द स्टॉक. उस घास फूस या चारे से क्या हो जाएगा, ग्रेन अलग हो जाएगा. आ रही बात समझ में? ठीक है. आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद में क्या होगा, विनोविंग. Next method is winnowing. We have seen some of the farmers that have the object like a boat, or that is used to separate out the mixed grains or the stones from the grains or husk from the grain. Whenever they take this grain on some height and throw इट ऑन द ग्राउंड, वो क्या करते हैं, उसको ऊपर उठाते हैं, किसी भी बर्तन में लेकर और गेहूं को ऊपर से या कोई भी अनाज उसको ऊपर से गिराते हैं, तो
ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द एयर। जो लाइट मटेरियल है, जो घास फूस है, उसके अंदर जो भी तिनके वगैरह हैं, वो हल्के होने के कारण दैट इज टेक अवे, बाहर चले जाते हैं बाय द विंड। हवा के साथ ही वो क्या होंगे, बाहर अलग हो जाएंगे और नीचे आकर गेहूं जो होगा आपका एक हीप बना लेगा, दैट इज अ ढेर। ढेर जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हीप। गेहूं ऊपर से हम लोगों ने गिराया, हवा के साथ में तेज हवा चल रही थी, तो हवा ने क्या किया, उन तिनकों को तो अलग कर दिया और गेहूं क्या होगा नीचे हमारे पास में एज अ हीप प्राप्त हो जाएगा मुझे, और दैट इज कॉल्ड द विनोइंग। विनोइंग क्या है, विनोइंग क्या है, विनोइंग इज द मेथड इन विच द स्टॉक्स और द लाइट वेटेड पार्टिकल्स आर सेपरेट आउट बाय द विंड व्हेनेवर वी आर taking the grain or mixture onto the height and throwing it on the ground। जब हम लोग उसको नीचे गिराएंगे तो क्या होगा, जो हल्के पार्टिकल्स है वो तो अलग हट जाएंगे और जो हैवी पार्टिकल्स जो गेहूं के हैं वो नीचे मुझे प्राप्त हो जाएंगे। ओके, इट इज कॉल्ड द विनोइंग, इट इज कॉल्ड विनोइंग। आफ्टर विनोइंग वन मोर मेथड वी हैव टू यूज, दैट इज सीविंग। व्हाट इज सीविंग, व्हाट इज सीविंग। सीविंग आया है सीव से, और सीव मीन्स क्या होता है, छलनी। ओके, सीव SEIVING, सीविंग मीन्स छानना, सीविंग मीन्स छानना। छान कर हम लोग किसी चीज को अगर सेपरेट आउट कर रहे हैं तो दैट इज डिपेंड्स ऑन द साइज, दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज। इट मीन्स सपोज द मिक्सचर हैव टू साइज materials or the substances or the grain that are separated out by the sieving। हम लोग उसको छानते हैं तो the smaller size particles will sieved out from the sieve, छनकर नीचे आ जाते हैं, और have जो larger size molecule है that are remains on the sieve, sieve के ऊपर वो रुक जाते हैं, तो उसको हम लोगों ने क्या बोला है, sieving। आई बात समझ में। whenever two different size materials are mixed with each other, तो then we have to use this type of method that is called sieving, or this sieving is used for the different size, for the separation of different size materials। दो different type के जो material हैं उनको separate out करने के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग, sieving का यूज करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। one more method that we have to use whenever two different type of or different nature of the materials will mix, suppose magnetic separation। what is magnetic separation? magnetic separation का मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा, whenever the magnetic substances are mixed with another substance then we have to use this type of method। अगर हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन की बात करें तो whenever the magnetic substances are mixed with the non-magnetic, आई बात समझ में, whenever the magnetic substances, suppose iron powder plus soil, iron powder plus soil, तो we have to separate out iron powder from the soil। तो what we have to do, we have to use a magnet that attracts the iron powder and leave the soil। उस soil को तो वो छोड़ देगा और iron powder को वो कैप्चर कर लेगा, और उस कंडीशन में आयरन पाउडर क्या होगा, इससे सेपरेट आउट हो जाएगा। आई बात समझ में। ओके, नाउ these are the normal methods or manual methods for the separation that we discussed। okay, first method is that we discussed hand picking, second method is threshing, third method is winnowing, fourth method is sieving, fifth method is magnetic separation। आई बात समझ में। हैंड पिकिंग मीन्स द सेपरेशन ऑफ द मटीरियल्स by the hand or
बाय द मैनुअल मेथड इज नोन एज हैंड पिकिंग। थ्रेशिंग में क्या करते हैं, व्हेन सब जो स्टॉक्स हैं, हार्वेस्टिंग कर ली हम लोगों ने, कटाई तो कर ली, आफ्टर द हार्वेस्टिंग वी हैव टू सेपरेट द स्टॉक्स फ्रॉम द ग्रेन। तो दिस type of method is used, that is called threshing. It involves the removal of the stalks or husk from the grains by beating it on the ground, by beating it on the ground, by beating on the solid surface or ground. Winnowing क्या है? Winnowing is the method of the separation of the light or heavy molecules. Winnowing is the method of the separation of the light or heavy molecules on the basis of their weight by the wind. हम लोग क्या करते हैं, पूरे दोनों जो मिक्सचर है मेरा, उस मिक्सचर को मैं ऊंचाई पर ले जाकर, हाइट पे ले जाकर उसको नीचे गिराऊंगा, तो जो लाइटर मॉलिक्यूल्स है that are taken away by the wind and the heavier molecules will remains at the same place in the form of a heap. Sieving, normal sieving is the separation of the materials on the basis of their size. Sieving जो होगा वो किसके बेसिस पे होगा, साइज के बेसिस पे होगा. The smaller molecules will separate out or sieved out from the sieve and on the ground. और जो heavy molecules है, larger molecules है, that are remains on the surface of sieve, वो sieve की surface पे ही रुक जाएंगे, और उस कंडीशन को, इस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, sieving. After that, the last method is magnetic separation. Two materials are here, that is magnetic material, and one more is non-magnetic. दूसरा क्या है, non-magnetic है. Magnetic materials that we discussed in the previous chapter, that is attracted by the magnet. जो magnet से attract हो सकता है, like iron and cobalt. ये जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं. ये दोनों क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं. नॉन मैग्नेटिक लाइक सॉइल, वुड, पेपर, प्लास्टिक, दीज थिंग्स आर नॉन मैग्नेटिक. इनको मैग्नेटिक नहीं बोलते हम लोग, बिकॉज दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट. तो मैग्नेटिक थिंग्स अगर किसी मिक्सचर में आ रही है तो वी हैव टू सेपरेट आउट दिस फ्रॉम द method of magnetic separation. Okay, it's all about your half manual methods or normal methods of separation. Manual methods, ये आपके क्या है, manual methods हैं. आई बात समझ में? Okay, now one more thing I have to say, that you all have to deposit your worksheet on my WhatsApp number, on my WhatsApp only, and before 4 PM in the evening. आप मुझे 4 बजे, शाम को 4 बजे से पहले अपनी वर्कशीट चेक करवाएंगे. उसके बाद में आपको ये अंदाजा नहीं होता कि आप लोग कितने बजे तक मैसेज कर रहे हो. नाइट में आप 11 o'clock तक मैसेज करते हो, तो व्हाट वी हैव टू डू ऑन दैट टाइम, वी विल चेक योर कॉपी. नो, सो प्लीज give your answers or submit your answers on my WhatsApp number before 4 PM. Okay, before 4 PM, otherwise I will not check, I will not give your marks. Okay, thank you, have a nice day.